ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਨੇ? ਫਰਸਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ SI is a coherent system of units। ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ F = ma, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ ਸਿੰਪਲ ਡਿਵਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ F = 2ma ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਹੇਰੈਂਟ। ਮੀਨਸ all derived units can be obtained by simple multiplication or division of fundamental units without introducing any numerical factor। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ numerical factor नहीं use ਕਰਦੇ, simple multiplication ਜਾਂ ਫਿਰ divide ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ simple fundamental units ਜਾਂ ਫਿਰ derived units find out ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਜਾਊਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਊਲ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਜਾਊਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਓਨਲੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਟ ਯੂਜ਼ਸ ਓਨਲੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਫॉर ਅ ਗਿਵਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੈਲੋਰੀ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਦੈਨ ਕਾਮਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਊਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਊਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਾਟ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ the multiples and sub multiple of the SI units can be expressed as a power of 10। ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਡੈਕਾਮੀਟਰ, ਹੈਕਟੋਮੀਟਰ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਨੈਨੋਮੀਟਰ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 10⁻⁴ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਡੈਕਾਮੀਟਰ, ਉਹ 10⁻⁴ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ SI ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? 10⁻⁴ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਬਸਲਿਊਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਬਸਲਿਊਟ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਿਸਟਮ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਬਸਲਿਊਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਸੀਗੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ। ਜਿਵੇਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਕਾਮਨ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਦੈਨ ਜਾਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕੈਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਟ ਆਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਸਮੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਕਟਾਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਡੈਕੋਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਲੋ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10⁻⁴ 'ਚ ਲਿਖਦੇ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10⁻³ ਮੀਟਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਇੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਲੈਂਥ, ਸਮੋਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਫਰਮੀ, ਆਂਗਸਟ੍ਰੋਨ, ਮਾਈਕਰੋਨ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਫਿਰ
प्रैक्टिकल यूनिट्स करवाइया तो लार्ज डिस्टेंस के लिए लाइट ईयर हो गया, अपने को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, पैरिसिक हो गया। फिर उस तो बाद मैंने तो कल करवाया सी परसों यूनिट्स ऑफ लेंथ कुछ आ भी करवाइया सी, ते फिर मैं तो करवाया सी यूनिट्स ऑफ एरिया। एवं मैं तो करवा रही हूँ अज प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम। टाइम दियाँ कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ यूज़ कर सकते हो, तो अगे ਤੁਹਾਨੂੰ कॉम्पीटिटिव एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। पहली आ गई सोलर डे। सोलर डे की होंगी है, इट इज़ द टाइम हैगा टाइम ही है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय अर्थ, कितना अर्थ टाइम लै रही है टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन नू कंप्लीट करने के लिए, किहदे वास्ते अपनी एक्सिस के अराउंड घूमन दे लई, अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पैक्ट टू सन, किहदे अकॉर्डिंग सन दे विद रिस्पैक्ट, किहदे अराउंड घूम रही है, वो अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रही है, उन्होंने सोलर डे बोलते हैं। जिवें डे नाइट बनते हैं ना, उन्होंने सोलर डे बोलते हैं भी वो टाइम जिहदे विच अर्थ कंप्लीट करती है एक रोटेशन, किहदे अराउंड अपनी एक्सिस के अराउंड, किहदे विद रिस्पैक्ट सन दे विद रिस्पैक्ट। एवं सोलर ईयर होंगे, सोलर ईयर तुहानूं पता ही भी अर्थ कंप्लीट करती है अपनी वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। आप पढ़ते हैं ना तो सिंपल वो कितना होंगे, एक सोलर ईयर किहदे कोल होंदा 365 1/4 होंगे, मिक्सड फ्रैक्शन दे विच आपां यूज़ करते ना सिंपल भी जिहड़ी अर्थ है एक चक्कर अपना किन्ने समय दे विच पूरा करती है 365 डिवाइड 1/4 मिक्सड फ्रैक्शन दे विच आंसर आंदा, आपां सिंपल इहनूं 365 दिनां दे विच कह दिंदे हां। एक होंदा लीप ईयर, लीप ईयर भी तुहानूं पता ही है भी 4 साल बाद आंदा हुंदा लीप ईयर है ना, द ईयर विच इज़ डिविजिबल बाय 4, जिहड़ा 4 साल बाद आवे ईयर मतलब 4 नाल डिवाइड हो जाता होवे, उहनूं आपां लीप ईयर बोलते हैं। जां फिर मंथ ऑफ फैबररी जिहदे विच 29 डेज आते हैं, ये भी 4 साल बाद आते हैं, दैन इहनूं आपां बोलते हैं लीप ईयर। ये तीनों जिहड़े हैगे इंपॉर्टेंट है, तुसीं याद करना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स का खत्म होंदा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही ਆਪਾਂ सौखा टॉपिक होर कैरी करते हैं, डायमेंशनस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनस का वैसे मैं तुहानूं जिहड़ा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला अपना लैक्चर सी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही मैं तुहानूं कुछ दस्सिया सी। देखो जिहड़ी डायमेंशनस फाइंड आउट करते हैं ये यूनिट्स ही होंदियां ने, सिंपल डायमेंशनस यूनिट्स ही होंदियां ने। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ करवाइयां सी ना मैंने, देखो आ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, अगर तुहानूं ये याद ने इन्हां ते बेस्ड ही ने अपनियां डायमेंशनस, तो ये तुहानूं याद होनियां चाहीदियां ने। मास जिन्हों आपां किलोग्राम दे विच मेजर करते हैं, अगर इनू पर लिखा कि मैं करांगे डायमेंशन दे विच स्केयर ब्रैकेट, ये जरूरी है जो भी तुसी डायमेंशन लिखनी है फंडामेंटल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, दैन उस चीज़ नूं तुसी उहनूं स्केयर ब्रैकेट दे विच पाओगे। जिवें मास दी M स्केयर ब्रैकेट दे विच पाओगे, लेंथ दी L स्केयर ब्रैकेट दे विच पाओगे, टाइम दी T मीनस डायमेंशन ऑफ M, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज इक्वल टू L स्केयर ब्रैकेट दे विच इहनूं डिनोट किया जाता है, टाइम नूं T, इलैक्ट्रिक करंट की आ गया अपने कोल A, डायमेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक टैंपरेचर की आ गया K, लुमिनस इंटेंसिटी की आ गई C D, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर की आ गया MOL। एवें हुण आपां डायमेंशनस करनियां सीखदे हां, इंपॉर्टेंट ने, इहदा एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। दस तुसीं इन्ना ध्यान रखना है भी जिहड़ी डायमेंशनस बनदियां ने फिजिकल क्वांटिटीज़ तो बनदियां ने, मीनस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो बनदियां ने जिन्हां नूं आपां ड्राइव नहीं कर सकते, ये जरूरी ने। चलो आपां इन्हां नूं करदे हां। कहते वी कॉल द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एज 7 डायमेंशनस ऑफ द वर्ल्ड। हुणी दस के चुकी है ना 7 डायमेंशनस किहड़ियां ने, मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर, टैंपरेचर, एंड नैक्सट वन इज एक किहड़ी रह गई अपने कोल इलैक्ट्रिक करंट। ये 7 यूनिट्स ने, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये उपर ही बेस्ड ने अपनिया डायमेंशनस, दैन 7 डायमेंशनस ऑफ द वर्ल्ड। ओके चलो मैं एक बार दोबारा लिख दिनी हाँ, तुसीं देख लो डायमेंशन ऑफ लेंथ तुसीं किवें लिखोगे। अगर तुहानूं लेंथ की डायमेंशन लिखनी आ गई, तुसीं इहनूं किवें फाइंड आउट करोगे, स्केयर ब्रैकेट दे विच L, मोस्टली विच आर डिनोटेड विद स्केयर ब्रैकेट
स्केयर ब्रैकेट दिस वन, ठीक है। जे डायमेंशन मैंने मास की लिखनी है दैन m, अगर मैंने टाइम की लिखनी है दैन t, अगर मैंने इलैक्ट्रिक करंट की लिखनी है की आऊगा a, अगर मैंने टैंपरेचर की लिखनी है की आऊगा k, अगर मैंने इंटेंसिटी की लिखनी है की आऊगा cd, अगर मैंने मैटर की लिखनी है क्वांटिटी ऑफ मैटर की लिखनी है फिर की आऊगा MOL। ये मैं तुहानू वन बाय वन सॉल्व करवानी हूँ, ठीक है। चलो सब तो पहला तुसीं इहदी डेफिनेशन लिख लो जिहड़ी मेन है। हर एक क्वांटिटी नू, हर एक जिहदा भी फॉर्मूला आ गया, भाई चाहे आपां नू फोर्स की डायमेंशन कढ़नी है, चाहे अपने वेलोसिटी डायमेंशन कढ़नी है, जिहदी भी कढ़नी है वो आप MLT की फॉर्म च ही कढ़नी है। मीनस दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुसीं हाले मैं कढ़वानी है फिर तुहानू समझ आना। तुसीं इहदी पहला डेफिनेशन लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला दी, डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर मैं तुहानू ड्राइव करवानी है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रजेंट, जिहदे ओ फॉर्मूला जिहदे विच फंडामेंटल क्वांटिटीज नू रिप्रजेंट किया जाता है उन्होंने आपां बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तुसीं किवें लिखोगे द एक्सप्रेशन by which fundamental quantities represent fundamental quantities are represent called dimensional formula of given physical quantity। next एक हुंदी है dimensional equation। dimensional equation ਉਹ इक्वेशन जिहदे विच डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता उन्होंने इक्वेशन बोल देंगे आ। ਇਹਦੀ भी डेफिनेशन लिख लो। वैसे डायमेंशन आंदियां नहीं गया डेफिनेशनस बट जरूरी ने भी, कई बार तुहानू पूछ लेंदे ने भी तुसीं फॉर्मूला नू डिफाइन करो, दैन तुसीं सौखी तरह इनू डिफाइन कर सकते हो। लिखो द इक्वेशन obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula called dimensional equation, जिहदे विच dimensional formula लिखा जाता वो इक्वेशन आपां की बोलते हैं dimensional equation। लिखो द इक्वेशन obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula called की किया जाऊगा called dimensional equation, called dimensional equation। चलो हुण आपां इन्हां नूं ड्राइव करते हैं। कुछ मैंने तुहानूं फॉर्मूलाज कढ के दिखाने। चलो सब तो सौखा पहली फॉर एग्जाम्पल लिख लो जिहदे नाल मैं तुहानूं फाइंड आउट करके दिखाऊंगी। फर्स्ट है एरिया, सब तो सौखा एरिया। यदि मैं डायमेंशनल तुहानूं फाइंड आउट करके दिखानी आ, जिहदी भी डायमेंशन कढनी है उहदा तुहानूं पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर ही आपां डायमेंशनल इक्वेशन बनावांगे। फॉर्मूला की हुंदा है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। दैन लेंथ की डायमेंशन भी की होगी लेंथ, ब्रेथ की डायमेंशन भी की होगी लेंथ, क्योंकि ये भी एक तरह की लेंथ ही है ना, ब्रेथ भी अपनी एवें एवें आ गई अपने को, आ लेंथ होगी आ ब्रेथ, ये भी एक तरह की लेंथ ही है ना। दैन आपां नूं पता है भी आपां डायमेंशनस नूं इन्हां 7 दे विच ही काउंट कर सकते, इहदे विच ही लिख सकते हैं। तो आपां ब्रेथ नूं भी किहदे विच लिखते हैं लेंथ दे विच। दैन की आ गया अपने को एल स्क्वायर। तो अपनी इक्वेशन लिखनी है डायमेंशनल इक्वेशन, किवें लिखूंगी एम का फैक्टर तो आया नहीं, M0
L square T0 मीनस ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ M L T मीनस ਤੁਸੀਂ एंड स्केयर ब्रैकेट लगानी है दिस इज अ फॉर्मूला एंड दिस इज अ इक्वेशन ये डिमेंशन दे विच लिखना है दिस इज नोन एज इक्वेशन दिस इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन नैक्सट जिवें मैं तुहानूं नैक्सट करके दिखावां वॉल्यूम तुसी भी नाल नाल मेरे करो मैं तुहानूं पुछूंगी 5 करूंगी बाकी तुसी खुद करने हैं वॉल्यूम वॉल्यूम हुंदा है फॉर्मूला लेंथ ब्रेड्थ into height length breadth height length ਨੂੰ ਵੀ L breadth ਦੀ ਵੀ L height ਵੀ length height ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ length ਹੀ ਆ then ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਆਇਆ L cube and ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗੀ m0 m ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ L cube T0 but this is a equation ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ नैक्सट आया अपने कोल डेंसिटी चलो तुसी डेंसिटी का मैनू फाइंड आउट करके दिखाओ ਇਹਦਾ फार्मूला मैं लिख दिनी है मास पर यूनिट वॉल्यूम दसो मैनू ਇਹਦਾ डायमेंशनल फार्मूला इक्वेशन कितनी आऊगी दसो हाँ जी दसो बेटा कितना आऊगा स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला की हुंदा है डिस्टेंस ओवर टाइम किसी ने नहीं कढ़िया बेटा हजे मैम m upon l cube वेरी गुड m upon l cube मींस m l minus 3 आ पावर ऊपर जा सकती है m l minus 3 दैन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ m ਦਾ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ l ਦੀ -3 ਆ ਗਿਆ t ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ t ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੁਣ वेलोसिटी कड्डो डिस्टेंस किदे विच मेजर कीती जांदी है आपां सिंपल L च लिखदे हां लेंथ एंड टाइम इज द T मींस आ गया LT - 1 इक्वेशन इज m0 LT - 1 नेक्स्ट आया अपने कोल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन लिखो बेटा की हुंदा है वेलोसिटी अपॉन टाइम दिस वन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ एंड मोमेंटम मैं तुहानूं दस्सिया सी ना मूविंग प्रॉपर्टी हुंदी है नैक्सट फोर्स फोर्स का फॉर्मूला तुहानूं पता ही है 9th 10th दे विच आपां करदे हां मास इनटू एक्सेलरेशन हाले तक मेरे कोल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं पहुंचा बेटा कितना हुंदा है हाँ जी बेटा हाँ जी एल टी माइनस वेरी गुड हाँ जी देखो आप फॉर्मूला इधर वेलोसिटी का कट चुके हैं ना LT - 1 टाइम का T आ गया आ भी T ऊपर जाऊगा माइनस हो जू LT - 2 दैन ये इक्वेशन आ गई m0 LT - 2 मोमेंटम फाइंड आउट करो बेटा मोमेंटम अगे आ गया वर्क का फॉर्मूला हुंदा है फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क भी तुसी करदे होंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड एनर्जी इज ऑल्सो सेम एज दैट ऑफ वर्क एनर्जी का फॉर्मूला भी सेम आऊगा जिहड़ा वर्क का हुंदा है अमाउंट ऑफ वर्क ही हुंदा है भी चलो बेटा मोमेंटम का दसो पावर का बेटा पावर का फॉर्मूला हुंदा वर्क अपॉन टाइम
हाँ जी, मोमेंटम का फॉर्मूला होंदा है एम, मास नूं आपां एम लिखांगे, वेलोसिटी नूं की लिखदे आ एल टी माइनस 1, दैन अपने कोल इक्वेशन बनी एम एल टी माइनस 1। आगे मास, मास नूं आपां फिर तो एम लिखदे आ, एक्सलरेशन दा आपां फाइंड आउट करके चुके हैं एल टी माइनस 2, दैन दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन एम एल टी माइनस 2। फोर्स, फोर्स दा आपां की कढ के चुके हैं, हुणी कड्ढी है एम एल टी माइनस 2, डिस्टेंस इज एल, दैन अपने कुल की आया एम एल स्क्वायर, क्योंकि एल 2 हो चुके हैं ना, टी माइनस 2। अमाउंट ऑफ वर्क, एनर्जी भी अमाउंट ऑफ वर्क होंदी है, सो इज द फॉर्मूला सेम होंदा है। नैक्सट पावर का की होंदा, वर्क आ गया ऊपर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 टाइम द टी ऊपर जाऊगा, दैन अपने को बन गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ओके जी, चलो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ यूनिट्स भी दसदी हाँ भी यूनिट्स ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ यूनिट्स ਦਾ। चलो ऐसा यूनिट करते हैं ਆਪਾਂ, एरिया यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, ਇਹਦੀ ਕੀ आ गई मीटर क्यूब, ਇਹਦੀ ਕੀ आई मास ਦੀ ਕੀ आई किलोग्राम, लेंथ ਦੀ ਕੀ आई मीटर माइनस 3, पावर उस तरह ही लगती जानी है। लेंथ ਦੀ ਕੀ आ गई मीटर, टाइम ਦੀ ਕੀ आ गई सेकंड माइनस 1, ਇਹਦੀ ਕੀ आऊगी मीटर, टाइम ਦੀ ਕੀ आ गई सेकंड माइनस 2, ਇਹਦਾ ਕੀ आ गया अपने को एम, एम ਦਾ ਕੀ आया किलोग्राम, एंड लेंथ का की आया मीटर, टाइम का की आ गया सेकंड माइनस 1, एवं मास का की आया किलोग्राम, एक्सलरेशन का की आया मीटर, टाइम सेकंड माइनस 2 कितना आ गया माइनस 2। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ अपने को वर्क का किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, पावर उस तरह ही आती है बस मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर एंड टाइम का सेकंड। ਇਹਦਾ ਕੀ आ गया अपने को ओमी सेम किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, ਇਹਦਾ ਕੀ आ गया अपने को किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3। ओके जी, ये अपने को सिंपल ने 10 फॉर्मूलाज। इस तो बाद तुम एक होर कर सकते हो 11वां प्रैशर। प्रैशर, प्रैशर की हुंदा अपने को सिंपल फोर्स अपॉन एरिया, ये भी तुम करते होंगे 9th 10th दे विच। फोर्स का फॉर्मूला की हुंदा है एम एल टी, ये ना तुहानू टिप्स के उपर याद हो जाएंगे, फिर तुहानू आ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पिया करनी। एरिया का हुंदा एल स्क्वायर, एक एल नाल एक एल कट गई, दैन एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, क्योंकि एक नीचे रहेगी ना 2 मिनट, दैन अपने को की आ गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। हुण इहदे आपां यूनिट की बना सकते हैं किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 2, क्योंकि कैल नीचे रहेगी ना, वो जो ऊपर होगी माइनस होगी, किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 2। ये ने 11 फॉर्मूले जिहड़े पैट ने, जिहड़े आपां बार बार फिजिक्स दे विच यूज़ करांगे, जिन्हां नूं तुसीं यूज़ करना ही है, मतलब तुहाडे कोल ये टिप्स ते होने चाहिए आ। बाकी मैं तुहानूं होमवर्क लई दसदी हां, होमवर्क दे लई तुसीं किहड़े-किहड़े यूज़ करने आ, किहड़े-किहड़े कढ के लिआने आ। होमवर्क है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी कैपिटल जी, यदि मैं तुहानूं यूनिट करवाई सी, जे तुहानूं याद होवे, जी इंपल्स, इंपल्स, इंपल्स हुंदा की है वो एक्शन जिहड़ा शॉर्ट टाइम दे लई कीता जावे, जिवें कि जो हुंदा बैट हुंदा ना, जो बैट दे नाल बॉल स्ट्राइक करदे आ, कुछ मिनट दे लई स्ट्राइक करदी है, उस तो बाद वो चली जाती है। जिवें कि पहला आपां नूं कोई चीज़ पता ना होवे भी गर्म है ठंडी, इक्को दम आपां हत्थ लगा लईए, रिफ्लैक्स एक्शन जिन्हों रिफ्लैक्स बोलते हैं, वो एक्शन आपां बहुत शॉर्ट टाइम दे लई करदे हैं, उन्होंने इंपल्स बोलते हैं। इहदा मैं फॉर्मूला दस दिन्नी आं, फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। इहदा फॉर्मूला तुसीं खुद तो कढना, मैं तुहानूं दस्सिआ सी। अगे हुंदा एक हुंदा है स्ट्रैस, स्ट्रैस हुंदा प्रेशर ही, इहदा फॉर्मूला भी मैं तुहानूं दस चुकी हाँ, फोर्स अपॉन एरिया, ये भी तुसीं करना है। एक तुसीं कढना है फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी कढ़ना है, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 1/टाइम। एक अपने कोल हुंदा है हाँ जी, एक हुंदा टाइम। तुसी टाइम का भी डिमेंशनल फॉर्मूला बनाना, टाइम का टाइम ही आ जाऊगा। दैन ये दस देने m0 l0 ओनली t। ये तुहाडा होमवर्क है जिहड़ा तुसी फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। चलो मैंने परसों भी तुहानू कुछ होमवर्क दिता सी, क्वेश्चनस फाइंड आउट करने दिते सी। मैनू लगदा मैंने वर्बली बोले सी, है ना। ਉਹਦਾ आंसर दस दो बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा ਤੁਹਾਡਾ। मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन पाया सी हाउ मेनी पैरासिक आर देयर इन 1 मीटर। ਇਹਦਾ आंसर आना है अगर हाँ जी बोलो 3.241 into 10⁻⁻17। वेरी गुड। अगला मैंने पाया सी हाउ मेनी पैरासिक आर देयर इन 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 0.307। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈंने ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मैं दोबारा दस रही हूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इंपल्स, स्ट्रेस, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। हाँ जी बेटा, मैं ना वीडियो यूट्यूब पे पा दूंगी, दैन तुसी ਉਹਨੂੰ सब्सक्राइब करके ना चैनल ਨੂੰ देख सकते हो, ठीक है बेटा। ओके चलो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ। ओके ठीक है बेटा, मैं सेंड कर दूंगी।